Hello everyone, welcome back to another edition of aldehydes and ketones. So, in the previous lecture, there was some technical difficulty arises in between and I had to interrupt my lecture on this portion itself. So, we are talking about reactivity of aldehydes and ketones. Reactivity of aldehydes and ketones, and in order to explain reactivity of aldehyde and ketones, the first point which was explained was influence of electronic effect. First point I have explained it, influence of electronic effect. What is that influence? शॉर्ट में एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. क्या हो रहा है अल्डिहाइड में? This carbonyl carbon is bonded to oxygen, hence this bond is a polar bond. And likewise in ketone also this bond is a polar bond. But this carbonyl carbon in aldehyde is bonded to an alkyl group and which exert plus I effect, and due to that plus I effect this positive charge on carbonyl carbon starts getting nullified. In case of ketone, there are two such plus I effect we see in case of ketones. So ketones have two alkyl groups directly bonded to carbonyl carbon and it experiences 2 plus I effect, and thereby this positive charge decreases further. As a result, this positive charge on carbon decreases further. It is less reactive towards nucleophilic reaction. So nucleophile cannot attack more easily on carbonyl carbon of ketone. It is easier for nucleophile to attack on carbonyl carbon of aldehyde. Correct? Because it is having more positive charge as compared to this carbonyl carbon of ketone, and that's why aldehydes are more reactive than ketone. Second point of discussion is, in order to explain reactivity, is steric hindrance. Steric hindrance, we know steric hindrance is overcrowding of molecule. Overcrowding. Now in case of aldehyde and ketone, once again what we see that in case of ketone the carbonyl carbon is overcrowded by two alkyl group. So once again this is positively charged carbon, carbonyl carbon in both the case aldehyde and ketone. So in case of aldehyde the carbonyl carbon is less overcrowded because it is having only one alkyl group, whereas in case of ketone the carbonyl carbon is more crowded by two alkyl group, hence it will hinder the approach of nucleophile towards carbonyl carbon. So this two alkyl group, they overcrowd around this carbonyl carbon, and thereby the approach of nucleophile towards this carbon get blocked, and therefore once again ketone becomes less reactive as compared to aldehyde towards nucleophilic attack. nucleophile को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज इजीली अवेलेबल कहाँ हो रहा है? अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे एज कंपेयर टू कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे. तो यहां पर अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा. और न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफाइल यानी हमें पता है न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज लविंग साइनाइड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, इवन अल्काइल ग्रुप आर न्यूक्लियोफाइल. तो ये सब जो है यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे किस पे अटैक कर सकते हैं? इजीली अल्डिहाइड में. और उससे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट काय पे होगा? कीटोन पे होगा. क्यों होगा कीटोन पे?
कीटोन के दो फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट टू अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के कार्बन कारण इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और दूसरा क्या है कि यहां पर ओवर क्राउडिंग होने से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक भी नहीं कर सकता, बैक साइड से अटैक भी नहीं कर सकता। जैसा हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में कि फ्रंट साइड पे तो ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा, बैक साइड से आएगा तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, एंड देयरफॉर अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। So this is the explanation towards reactivity of aldehyde and ketone. One point to be noted here, we should keep it in mind when we compare aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. Aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. अगर ये दोनों को कंपेयर करें तो अब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा? एलिफेटिक यानी RCHO हो गया, एरोमेटिक यानी ये बेंजीन रिंग वाला अल्डिहाइड हो गया। अब इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होने वाला है? क्योंकि फिर से वही लॉजिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो लेस कार्बन लेस इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज व्हाट which group? It is a C6H5 group. This will be in conjugation with carbonyl carbon. In conjugation with carbonyl carbon. तो ये क्या करेगा? ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बहुत डिक्रीज कर देगा, है ना? This will decrease the positive charge and therefore nucleophile cannot attack easily. Plus this is a very bulky group as compared to alkyl group. अगर यहाँ CH3 लगा दिया CHO और ये C6H5 मिनिमम रहने वाला है, तो ये दोनों कारण से एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है वो लेस रिएक्टिव होगा और एलिफेटिक अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। यानी हमारे पास में ट्रेंड अगर बन गया तो हम क्या लिखेंगे? एलिफेटिक अल्डिहाइड, है ना? एलिफेटिक अल्डिहाइड में एग्जाम्पल HCHO is more reactive than CH3CHO, which is more reactive than ketone and which is more reactive than aromatic aldehyde. So aromatic aldehyde is less reactive when we compare with aliphatic aldehyde. So aliphatic aldehyde is more reactive than aromatic aldehyde. So this is all about the reactivity of aldehydes and ketones. Okay, reactivity of aldehydes and ketones. So we know it. Now we will see chemical properties of aldehydes and ketones. So let us move to chemical properties or chemical reactivity. So chemical reactions, chemical properties of aldehydes and ketones. Now when we say about aldehyde and ketone, both have different structure and therefore they must have some different reaction, but they also show some common reactions because of presence of carbonyl group. तो ये carbonyl group होने से they have some kind of reactions common, but some reactions are going to be different amongst aldehyde and ketones. तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि aldehydes can be easily oxidized. Can be easily oxidized. Why does they can be easily oxidized? Because of presence of free or active hydrogen. Free or active hydrogen on carbonyl carbon. Aldehydes can be easily oxidized. Ketone में क्या होगा? Ketones cannot be oxidized easily. Reason क्या हो जाएगा? No free hydrogen or active hydrogen on ketone, because it is directly bonded to two similar or different alkyl group. So ketone is not easily oxidized. अब ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या मिलता है ये भी पता है,
aldehyde can be easily oxidized to carboxylic acid. हमने पढ़ा था इसके पहले कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. सो अल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज. रीजन availability of free or active hydrogen on aldehyde. Ketones cannot be oxidized easily since it does not carry free or active hydrogen. So this is the point by which we can distinguish aldehydes and ketones chemically. Now we will see some reactions shown by aldehydes and ketones. To distinguish aldehyde and ketones, we will take reactions observed in aldehydes only. Aldehydes only. Only aldehyde shows certain reactions. और उसमें दो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एक तो है सबसे पहले ये शिप्स बेस और शिप्स रिएजेंट. शिप्स बेस और शिप्स रिएजेंट, इसमें क्या होता है कि आप एल्डिहाइड ले लीजिए और उसे शिप्स बेस से रिएक्ट कर दो. You will find some change in color. We will see that point. Before that, what is Schiff's base or reagent? Schiff's base or reagent is an alkaline solution of para-rose-aniline. Para-rose-aniline. पैरारोजेनिलीन एक केमिकल है. इसका कलर होता है मैजेंटा कलर. एंड व्हेन SO2 gas is added, when SO2 gas is passed through it, क्या होगा? ये जो मैजेंटा कलर है, it gives colorless solution. इसका मतलब है कि जो शिप्स बेस या शिप्स रिएजेंट है, ये क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है. बनता कैसे है? पैरारोजेनिलीन जो मैजेंटा कलर है, उसमें जब SO2 गैस हम पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन मैजेंटा कलर काहे में कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस सॉल्यूशन में. तो शिप्स बेस is a solution of para-rose-aniline with SO2 gas. इतना हम याद रख सकते हैं. Para-rose-aniline and SO2 gas will provide Schiff's base, which is a colorless solution. Under cold condition, when these two are reacted together, क्या होगा? This aldehyde oxidizes or it converts this colorless solution into magenta color again. Magenta color. This change in color suggests that aldehyde possess CHO group, because ketone does not show this reaction. So aldehyde plus Schiff's base. Schiff's base क्या है? Para-rose-aniline with SO2. Para-rose-aniline with SO2 will give Schiff's base. और वो कलर क्या होता है? उसका कलरलेस का मैजेंटा कलर में आ गया, यानी जो गिवन सॉल्यूशन है वो अल्डिहाइड का है. एंड दिस कंफर्म्स that aldehyde possess CHO group, or the given sample possess CHO group. So this is about the first test shown by aldehyde only, and that is Schiff's base. Now the second is Tollens reagent.
टॉलरेंस टेस्ट जिसे हम कहेंगे। अब टॉलरेंस टेस्ट में भी ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या है पहले उसको समझेंगे, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट को याद रखना है, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। It is a ammonical silver nitrate solution. Tollens reagent is ammonical silver nitrate solution. कैसे बनता है ये? आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए और उसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन कीजिए तो आपको मिलेगा टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? तो इट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। It is prepared by mixing silver nitrate and ammonium hydroxide. अब इसमें क्या होता है कि ये जो टॉलरेंस टेस्ट है इसको एक और नाम से बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। अब सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। What happens here? We take solution of aldehyde. To that we add Tollens reagent and we heat that solution carefully. What we see, there is a deposition of silver on the inner wall of the test tube and that's why it is called as silver mirror test. अब silver कैसे डिपॉजिट होती है ये थोड़ा केमिकली भी देखेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये लेते हैं अल्डिहाइड RCHO, दिख रहा है सभी को। अब हमें क्या करना है कि इस टॉलरेंस रिएजेंट लेना है, तो टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज प्लस थ्राइस OH -1 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग इट? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये पूरे को आप बोलेंगे टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट। सो व्हेन दे आर हीटेड स्ट्रांगली, हीटेड ओवर वाटर बाथ, तो ये अल्डिहाइड लिया आपने। अब क्या होगा, अल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन। This is carboxylate ion. एक्चुअली इसका बन जाएगा आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और हमें मिलेगा यहां पर ट्वाइस Ag सॉलिड। ट्वाइस Ag सॉलिड, मैं इसको डाउन एरो से दिखा रहा हूं, यानी सिल्वर डिपॉजिट होता है, प्लस 4 टाइम्स NH3 प्लस H2O, 3 1 4, 2 इधर चले गए तो 2 ट्वाइस H2O। Now this deposition of silver is what we call as silver mirror। क्या होता है कि जैसे आपने ये एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशन फिल किया, तो जैसे सॉल्यूशन में आपका रिएक्टेंट क्या क्या आ जाएगी, इसमें कंटेंट क्या क्या आ गए टेस्ट ट्यूब में, आपने लिया था अल्डिहाइड और इसके साथ क्या लिया था, टॉलरेंस रिएजेंट। जब आप इसे हीट करेंगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी सी हियर, दैट आफ्टर सम टाइम व्हाट वी सी, देयर इज अ डिपॉजिशन ऑफ सिल्वर ऑन द इनर लाइन, इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। आप ये सॉल्यूशन पूरा खाली कर देंगे तो टेस्ट ट्यूब पे ये इस तरह से डिपॉजिशन दिखेगा। तो ये जो डिपॉजिशन है ये सिल्वर का डिपॉजिशन है। कहां पर है ये वाला सिल्वर है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर, क्योंकि थोड़ा शाइन करता है, वो शाइन करता है इसीलिए उसे सिल्वर मिरर कहेंगे। तो क्या हो रहा है टॉलरेंस टेस्ट में, टॉलरेंस रिएजेंट इज एन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन which is prepared by mixing silver nitrate and ammonium hydroxide, करेक्ट। तो जब आप एल्डिहाइड को सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा
कार्बोक्सिलेट आयन में। और एक चेंज क्या दिखेगा आपको कि ये जो सिल्वर आयन है ये रिड्यूस हो गए, है ना, दे गेट रिड्यूस्ड टू सिल्वर मेटल, है ना, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि व्हाट हैपेंस इन टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर आयन get reduced to silver metal, and this silver metal get deposited in the form of silver mirror. So this is not given by ketone, given only by aldehyde. We call this as Tollens test. Third है Felling's solution, Felling's test. अब ये भी सिर्फ अल्डिहाइड ही शो करेंगे, कीटोन शो नहीं करते हैं ये। तो इसमें क्या होता है अब ये भी समझते हैं हम कि टोलर्स, पहले फेलिंग सोल्यूशन, तो पहले समझते हैं कि फेलिंग्स सोल्यूशन क्या है। फेलिंग्स सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेलिंग ए, फेलिंग्स ए सोल्यूशन एंड फेलिंग्स बी सोल्यूशन। फेलिंग्स ए है एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसका कलर क्या दिखेगा आपको, कॉपर सल्फेट का कलर हमको पता है ब्लू है। अब इसमें फेलिंग बी मिलाते हैं। फेलिंग बी इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ, it is an alkaline solution of sodium, potassium tartarate। ये टार्टरेट आया कहां से है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हमको पता है, टार्टरिक एसिड क्या होता है, इट इज फाउंड इन टेमेरिन, इमली में होता है टार्टरिक एसिड। तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, it is also called as Rothschild salt. It is a double salt. Okay, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन शोन बाय एल्डिहाइड्स ओनली, और ये थर्ड रिएक्शन है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए हमने लगने वाला है फेलिंग सोल्यूशन, और फेलिंग सोल्यूशन बनता है फेलिंग ए और फेलिंग बी को कंबाइन करने से। फेलिंग ए है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस मीडियम में जो ब्लू कलर रहेगा। फेलिंग बी रहेगा अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट व्हिच इज आल्सो नोन एज रोचिल सॉल्ट। ये दोनों को जब मिक्स करेंगे, है ना, ये दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तब आपको मिलेगा फेलिंग सोल्यूशन। और ये फेलिंग सोल्यूशन एट द टाइम ऑफ रिएक्शन, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन हम इसे मिक्स करते हैं। दोनों सेपरेट बॉटल में स्टोर किया जाता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी। इसको मिक्स करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन बनेगा, और उसे यूज कब करना है, टू बी यूज एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। तो क्या होती है रिएक्शन, अब फिर से यहाँ अल्डिहाइड लिया हमने। अब हमें क्या देखने का है कि फेलिंग सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला बनता है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 5OH माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला बना फेलिंग्स सोल्यूशन का। ये कॉम्प्लेक्स है, फिर से इसे ऐसा ही हम लिखेंगे फेलिंग्स सोल्यूशन, करेक्ट है। When these two are heated together, क्या होगा, ये सोल्यूशन तो रहेगा ब्लू कलर का। जैसे आप इसे एल्डिहाइड के साथ हीट करेंगे तो आपको रिएक्शन में ये तो दिखेगा नहीं, लेकिन कन्वर्शन क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में, और जो आपको दिखाई देगा वो रहेगा ये वाला कंपाउंड, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विल बी ऑब्टेन्ड। तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन हीट करने से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। दिख रहा है सभी को, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट प्लस थ्राइस H2O।
So this is the test shown by aldehydes only. We name it as Fehling solution. इसमें क्या हो रहा है? Aldehyde get oxidized to carboxylate ion which finally get converted to carboxylic acid, है ना? तो aldehyde का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब इस रिएक्शन में भी जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे आप। यहां पर कॉपर की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। और जो आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड दिख रहा है यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। तो फिर से क्या हो रहा है? इसे हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक आयन गेट रिड्यूस्ड टू cuprous ion. So there is a reduction of cupric ion into cuprous ion, and this is what the test shown by aldehydes only. तो aldehyde से कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो अल्डिहाइड की रिएक्शन कौन सी रहेगी? अल्डिहाइड पहला रहेगा शिप्स बेस, दूसरा रहेगा टोलेंस रिएजेंट और तीसरा आ जाएगा आपके पास में फेलिंग्स टेस्ट। तो बाय दिस थ्री वी कैन डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स ओनली। अब एक रिएक्शन है जो सिर्फ कीटोन शो करता है ना? वो रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो एल्डिहाइड की ये रिएक्शन हो गई। आज की ये आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं। टेस्ट शोन बाय कीटोन्स ओनली, कीटोन्स ओनली, टेस्ट शोन बाय कीटोन्स ओनली, और वो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। आपको क्या करना है? कीटोन मॉलिक्यूल लेना है। ये लिया आपने कीटोन CH3COCH3, एसीटोन लिया। इसमें आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन है जो है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, है ना? तो उसे मिक्स कर देंगे आप। यानी लिखने के लिए कैसा लिखेंगे? लिखने के लिए क्या लिखेंगे? कीटोन प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रोक्लोराइड, और आपको यहां मिलेगा वाइन रेड कलर। हो गया सिंपल टेस्ट। लेकिन इस रिएक्शन में बेसिक कैसे रिएक्शन होती है इसको समझेंगे, है ना? ये तो सिंपल सा आपने कीटोन लिया, एसीटोन सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रिएजेंट बना हुआ है, ऐड कर दिया, वाइन रेड कलर आ गया, कीटोनिक ग्रुप कंफर्म हो गया। रिएक्शन शोन बाय कीटोन्स ओनली, अल्डिहाइड डज नॉट गिव एनी वाइन रेड कलर ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब इसमें क्या होता है? इट इज ए टू स्टेप रिएक्शन बेसिकली। ये एसीटोन लिया आपने, इसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्कलाइन मीडियम, तो ये क्या बना देगा यहाँ पर? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 प्लस H2O। जरा चेंज बताएंगे मुझे, क्या चेंज हो रहा है? कि यहां से एक प्रोटॉन ये बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और वो एब्स्ट्रैक्ट करने से यहां का एक प्रोटॉन गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये क्या बना? कार्बेनियन बन गया। करेक्ट है? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट में पहले ये कार्बेनियन बनाएंगे, और ये कार्बेनियन अब क्या करेगा? नाइट्रोक्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा। नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? FeCN5 टाइम्स NO with 2 negative charge. Correct? With 2 negative charge we get here नाइट्रोक्लोराइड। तो ये बना आपका नाइट्रोक्लोराइड। ये आपका कार्बेनियन। अब जब ये रिएक्ट करेगा तो यहां पर देगा वाइन रेड कलर। ये कॉम्प्लेक्स बना देगा वाइन रेड कलर। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा ये देख लीजिए आप। ये Fe वैसा बिल्कुल वैसे CN5 टाइम्स, कोई चेंज नहीं, NO। अब इसके साथ ज्वाइन क्या हो जाएगा? इसके साथ ज्वाइन क्या हो जाएगा?
CH2 CO CH3 with 3 minus. तो ये कॉम्प्लेक्स बना and this complex has wine red color and thereby we can distinguish ketone from aldehyde. तो एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 3 टेस्ट, शिप्स बेस, टोलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सॉल्यूशन. कीटोन को एल्डिहाइड से अलग करने के लिए क्या है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड. ओके, सो दिस इज व्हाट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड and ketones. reaction shown only by aldehyde, reaction shown by only ketone. अब हम आगे की reactions next lecture में पढ़ेंगे and see you in the next class.